Welcome to the video and welcome back to the channel. I hope you all are doing good and you have revised everything which we have done in the previous classes. So we have completed respiration. We have seen the scenarios where glucose is broken down into pyruvate, and pyruvate has three scenarios: presence of oxygen, absence of oxygen and lack of oxygen. And now we'll continue with that only. Respiratory system in human beings we'll see today and some other things in respiration. So take out your books and start reading with me. Today we'll see more things about respiration only. We have completed till here this flowchart. I told you some points about ATP. We'll read this more to know paragraph about ATP only. So what is the full form of ATP? Adenosine triphosphate. ATP. Adenosine triphosphate. Triphosphate means it has three phosphate molecules. Triphosphate. So actually what happens, there is another term known as ADP. ADP, when it combines with phosphorus, P for phosphorus, it will form ATP. And ATP, as you know, is the energy currency in our body. ATP is the energy currency. So all the energy requirements are met in the form of ATP in our body. ATP is the energy currency. So let's read about it more from your books. ATP is the energy currency for most cellular process. All the processes which are going in our body requires energy in the form of ATP only. And which reactions takes place inside our body? Endothermic reaction, because they are using heat. The energy released during the process of respiration is used to make an ATP molecule from ADP and inorganic phosphate. This is ADP and this is inorganic phosphate. Inorganic phosphate. P for phosphate. So ADP plus inorganic phosphate will give you ATP. So when this inorganic molecule is attached to ADP, it will form ATP, and this is the energy currency. Endothermic process in the cell then use this ATP to derive the reaction. I told you cell will use ATP to fulfill the endothermic reaction. When the terminal phosphate linkage in ATP is broken using water, the energy equivalent to 30.5 kilojoule per mole is released. So when this linkage is broken down, the ATP linkage, because it has three phosphates, triphosphate means it has three phosphate. So when this linkage is broken down using water, how much energy will it release? 30.5 kilojoule. 30.5 kilojoule per mole when the linkage is broken down with the help of water. Think of how a battery can provide energy for many different kinds of uses. It can be used to obtain mechanical energy, light energy, electrical energy, and so on. You know that battery, if we insert battery inside a cell, inside a the remote or anything, so it can be used in different forms. Similarly, ATP can also be used in different forms. Similarly, ATP can be used in the cells for the contraction of muscles, protein synthesis, कंडक्शन ऑफ नर्वस इम्पल्स एंड मैनी अदर एक्टिविटीज़. तो ऐसा नहीं है कि एटीपी सिर्फ एंडोथर्मिक रिएक्शंस के लिए ही यूज़ होगा. नो, वो बहुत सारी अदर चीज़ें जहाँ पे भी हमारी बॉडी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, एटीपी वहाँ अपना फंक्शन फुलफिल करेगा. ऐसा नहीं है कि सिर्फ एंडोथर्मिक रिएक्शंस में ही होगा. नो, कहीं पे भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट आएगी, कौन फुलफिल करेगा? एटीपी. Now next paragraph, since the aerobic respiration pathway depends on oxygen, there are two kinds of respiratory pathways. First is aerobic and second is anaerobic. Aerobic respiratory pathway needs oxygen. Anaerobic functions in the absence of oxygen. So you know, aerobic respiratory pathway depends on oxygen. Aerobic organism need to ensure that there is sufficient intake of oxygen. There should be sufficient intake of oxygen. What happens when there is lack of oxygen? Accumulation of lactic acid which causes muscle cramps. So aerobic organisms को ensure करना पड़ता है कि उनके पास sufficient amount of oxygen होनी चाहिए. We have seen that plants exchange gases through stomata. Do you remember the structure? This was the structure. This hole is known as stomata. These are the guard cells
And some green dots are also present. They are known as, remember, chloroplast. And inside chloroplast, chlorophyll is present. So exchange of gases takes place at stomata. Exchange of gases will take place here. Exchange of gases like CO2 and oxygen, CO2 and O2. So a large, yes, we have seen that plants exchange gases through stomata, and the large intercellular spaces ensure that all the cells are in contact with air. What will be the function of stomata? Exchange of gases. Now there are some intercellular spaces also which will ensure that each cell is in contact with air. प्रॉपर स्पेसिंग होनी चाहिए सेल्स के बीच में भी. ऐसे नहीं है बहुत ज़्यादा टाइटली पैक्ड हो, बहुत ज़्यादा लूजली हो. प्रॉपर स्पेस होना चाहिए हर सेल के बीच में, ताकि एक तो इंश्योर रहे स्टोमेटा से एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एंड सेकेंड थिंग दे आर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द एयर. एयर के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में भी होने चाहिए. ये हमें स्पेसिंग के थ्रू इंश्योर करना होगा. Carbon dioxide and oxygen are exchanged by diffusion here. So by which process, a question can come in your exam, by which process CO2 and O2 are exchanged? By diffusion method, by diffusion. So the exchange of gases like carbon dioxide and oxygen takes place by diffusion through stomata, by diffusion. This question can come in your exam. Question: by which process? Diffusion process. They can go into the cells or away from them and out into the air. The direction of diffusion depends on the environmental condition and the requirement of the plant. So environmental conditions are different during day and during night. Now what happens at night when there is no photosynthesis? Why there will be no photosynthesis at night? Because sunlight is not present. CO2 elimination is the major exchange activity going on. And during day, CO2 generated during respiration is used up for photosynthesis. Hence, there is no CO2 release. Instead, oxygen release is the major event at this time. So, two cases are there, during day and during night. So, what happens during day? Sunlight will be there during day, and at night, no sunlight will be there. So, photosynthesis will take place during day. Photosynthesis, yes, and here no. Sunlight is present, yes. So CO2 will be eliminated. Sorry, CO2 will be absorbed during day, and here CO2 will be eliminated. At night CO2 will be eliminated. During day CO2 will be absorbed. It will be eliminated. Oxygen is released during day, O2 is released, and at night O2 is absorbed. So this is the difference during day and at night. During day photosynthesis will occur because of the presence of sunlight. At night no. CO2 will be absorbed during day and oxygen is released, and opposite happens at night. CO2 is eliminated and oxygen is absorbed. इसीलिए आपने कभी कभी सुना होगा कि हमें पेड़ों के पास नहीं सोना चाहिए रात में. क्यों? क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं रात में, और दिन में कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं. तो ये डिफरेंस होता है ड्यूरिंग डे एंड एट नाइट. एनिमल्स, नाउ दिस वाज ऑफ प्लांट्स. नाउ टॉकिंग अबाउट एनिमल्स. सो यू नो एनिमल्स, द हैबिटेट ऑफ एनिमल्स, it varies like terrestrial animal, aquatic animals. So animals have evolved different organs for uptake of oxygen. Like we have lungs for uptaking oxygen. Animals के पास भी different organs होते हैं uptake करने के लिए. कुछ aquatic animals होते हैं, उनके पास gills होते हैं, birds होते हैं, बहुत टाइप के animals होते हैं. तो सबने अपने आप को evolve किया है environment के according oxygen को absorb करने के लिए. Animals have evolved different organs for the uptake of oxygen from the environment and for getting rid of carbon dioxide. Animals also, they release carbon dioxide and intake oxygen. Terrestrial animals कौन होते हैं? जो लैंड पे रहते हैं. Terrestrial animals can breathe oxygen in the atmosphere, but animals that live in water need to use the oxygen dissolved in water. अब देखो दो तरह के एनिमल्स हैं, एक जो लैंड पे रहते हैं, एक जो वाटर में रहते हैं. जो एनिमल लैंड में रहते हैं वो हमारी तरह एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को
इनटेक कर सकते हैं, लेकिन जो एनिमल्स वाटर में रहते हैं, अब वो वाटर में रहते हैं तो वो ऑक्सीजन कैसे लेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन तो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। अब वाटर के अंदर तो सिर्फ वाटर प्रेजेंट होता है, तो जो हमारा पानी होता है जिसमें भी एक्वेटिक एनिमल्स रहते हैं उसी में ऑक्सीजन डिसॉल्व होती है, तो वो उस पानी के थ्रू ऑक्सीजन को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब करते हैं। तो 2 scenarios are there. I can rub this. This was for plants during day at night, and this was about ATP. ADP, when it is combined with inorganic phosphate, will form ATP. Now this ATP linkage has to be broken down to give you energy. How much energy? 30.5 kilojoule. This ATP linkage has to be broken down to give 30.5 kilojoule per moles of energy. And this energy can be used in various purpose. ऐसा नहीं है सिर्फ एंडोथर्मिक रिएक्शंस के लिए, किसी भी पर्पस के लिए हमारी बॉडी में जहाँ पे भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी वहाँ पे ATP आके फुलफिल करेगा. Now let's talk about animals, terrestrial animals and aquatic animals. So terrestrial animals and aquatic. Terrestrial animals are those which live on land and they live in water. तो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स तो ह्यूमन बींग्स की तरह एटमॉस्फेयर से ही ऑक्सीजन ले सकते हैं, तो दे टेक ऑक्सीजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर. एंड एक्वेटिक एनिमल्स विल टेक ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर. Oxygen is dissolved in water, in dissolved form. It is dissolved in water. And yes, animals that live in water need to use oxygen dissolved in water. Since the amount of dissolved oxygen is fairly low compared to the amount of oxygen in the air, so the rate of breathing in aquatic animals is much faster than seen in terrestrial animals. थर्ड पॉइंट, रेट ऑफ ब्रीदिंग किस में ज्यादा होगा? एक्वेटिक एनिमल्स में. रेट ऑफ ब्रीदिंग विल बी लो इन टेरेस्ट्रियल एनिमल्स एंड हियर इट विल बी हाई और मच फास्टर. अब ऐसा क्यों कि एक्वेटिक एनिमल्स का ब्रीदिंग रेट फास्टर है बट टेरेस्ट्रियल एनिमल्स का ब्रीदिंग रेट स्लो है या लो है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि एक्वेटिक एनिमल्स जो होते हैं वो ऑक्सीजन को कहाँ से लेते हैं? डिसॉल्व फॉर्म में लेते हैं. लेकिन जो ऑक्सीजन हमारे पानी में डिसॉल्व फॉर्म में होती है ना, वो बहुत कम होती है एज कम्पेयर टू द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर. तो अगर कुछ चीज़ कम है तो उन्हें जल्दी जल्दी लेना पड़ेगा ना, ताकि ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो. अब जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं वो तो ऑक्सीजन हवा से ही ले रहे हैं, एटमॉस्फेयर से ले रहे हैं, तो एटमॉस्फेयर में तो सफिशिएंट अमाउंट में होती है, लेकिन पानी में वो कम अमाउंट में होती है, इसलिए उनको जल्दी जल्दी ब्रीदिंग करनी होती है ताकि उनकी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बढ़े. बट यहाँ पे एटमॉस्फेयर में सफिशिएंट होती है तो इनका ब्रीदिंग रेट कंपैरेटिवली स्लो होता है, बट इनका फास्टर होता है ताकि वो जल्दी जल्दी ऑक्सीजन को लेके अपनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकें. Fishes take in water through their mouths and force it past the gills where the dissolved oxygen is taken up by the blood. So इस कौन सा ऑर्गन होता है एक्वेटिक एनिमल्स के पास? मेनली फिशेस के पास गिल्स होते हैं, एंड देन द ऑक्सीजन इज एब्सॉर्ब बाय द ब्लड. Terrestrial organism use the oxygen in the atmosphere for respiration. This oxygen is absorbed by different organ in different animals. All these organs have a structure that increases the surface area which is in contact with the oxygen rich atmosphere. अब देखो यहाँ पे तो स्पेसिफिक ऑर्गन है फिशेस के पास, जैसे गिल्स है, ऐसे टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स में बहुत टाइप के ऑर्गेनिज्म है, तो सबके पास डिफरेंट ऑर्गन होता है ऑक्सीजन को इनटेक करने के लिए, और वो इस जो उसका सरफेस एरिया होता है वो इस टाइप से होता है कि वो मैक्सिमम ऑक्सीजन को ले सकें. All these organs have a structure that increases the surface area which is in contact with the oxygen rich atmosphere. तो इनके पास ऐसा सरफेस होता है जो कि इंक्रीज कर सके सरफेस एरिया को. तो ये हो गया इनका ऑर्गन, एंड यहाँ पे ऑर्गन विल वेरी, इट विल वेरी डिपेंडिंग ऑन द एनिमल, एंड द ऑर्गन इज ऑफ काइंड. ऐसा ऑर्गन होना चाहिए, ऐसा रेस्पिरेटरी सिस्टम होना चाहिए जो कि सरफेस एरिया को इंक्रीज करे, सरफेस एरिया को इंक्रीज करें, इंक्रीज. Next point, since the exchange of oxygen and carbon dioxide has to take place across this surface is very fine
एंड डेलिकेट, बिकॉज जो भी उनका स्ट्रक्चर है वो ऐसा होना चाहिए जिससे सरफेस एरिया बढ़े. अब सरफेस एरिया बढ़ने से क्या होगा, ये जो सरफेस होता है ये बहुत फाइन होता है और डेलिकेट होता है. In order to protect this surface, it is usually placed within the body, so there have to be passage that will take air into this area. In addition, there is a mechanism for moving the air in and out of this area where the oxygen is absorbed. जैसे ह्यूमन बींग्स के पास क्या होता है, लंग्स होता है. अब लंग्स भी कितना डेलिकेट ऑर्गन है, तो वो हमारे स्केलेटल सिस्टम के अंदर बंद है ना, पूरे रिब्स के अंदर पूरा प्रोटेक्ट है, क्योंकि बहुत डेलिकेट होते हैं. ये जितने भी ऑर्गन्स होते हैं बहुत सेंसिटिव होते हैं और बहुत डेलिकेट होते हैं. तो हमें ये जो और जो इनका सरफेस होता है ये भी बहुत डेलिकेट होता है. सो देयर हैव टू बी अ पैसेज दैट विल टेक एयर टू दिस एरिया, एंड इन एडिशन टू दिस देयर इज अ मैकेनिज्म फॉर मूविंग द एयर इन एंड आउट ऑफ दिस एरिया where the oxygen is absorbed. We will see in the human respiratory system what they are talking here. Now coming to human beings, the air is taken into the body through the nostrils. We take the air from nostrils. The air passing through the nostrils is filtered by the fine hairs that line the passage. अब देखो हमारे nostrils के अंदर जब हम देखा होगा आपने hairs present होते हैं. अब इन hairs का भी एक रोल होता है, ये फिल्टर करते हैं एयर को. जो भी हम एयर इस नॉस्ट्रल के थ्रू लेते हैं उसको फिल्टर करने का काम कौन करता है, हेयर्स जो कि प्रेजेंट होते हैं. द पैसेज इज ऑल्सो लाइन विद म्यूकस विच हेल्प्स इन दिस प्रोसेस. म्यूकस का काम भी यही होता है, वो भी फिल्टर आउट करने में हेल्प करता है. हेयर्स भी हेल्प करते हैं, म्यूकस भी हेल्प करता है. फ्रॉम देयर द एयर पासिस थ्रू द थ्रोट इनटू द लंग्स. नाउ रिंग्स ऑफ कार्टिलेज आर प्रेजेंट इन द थ्रोट. These ensure that air passage does not collapse. Okay, let's draw a flow chart. I hope these differences are clear to you. Terrestrial animals are those who live on land, water. Oxygen they will take from atmosphere, they will take oxygen from water. Rate of breathing will be slow, here the rate of breathing will be faster. The organs बहुत मॉडिफाइड होते हैं ताकि उनका सर्फेस एरिया इंक्रीज हो जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वो ऑक्सीजन ले सके. और यहाँ पे फिशेस का एग्जांपल है, ऑर्गन होता है इनका गिल्स, और गिल्स के बाद जो भी ऑक्सीजन होती है वो ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाती है. Now let's draw the flow chart of human beings, respiratory system in human beings, and draw this flow chart in your notebooks or books, mainly in your book. First of all, nostrils, then hairs. For filtration they will filter, then mucus. After mucus, what will happen? The passage is also lined with mucus. From here, the air passes through the throat and into the lungs. Throat, then into the lungs. Rings of cartilage are present in the throat that ensures that air passage does not collapse. So, where does the ring of cartilage present? Where is it present? In the throat. Ring of cartilage. This question can come as an MCQ or as in the form of fill in the blanks. Rings of cartilage कहाँ present होगी? Throat में. अब ये क्यों present है? ताकि वो collapse ना हो. देखो क्या ऐसे होता है structure, कुछ ऐसे rings होती हैं, कुछ ये ऐसे circle के form में होते हैं पूरा. तो आगे से आपको सिर्फ ऐसा दिखेगा. अब जब भी air यहाँ से pass होगी, ये rings of cartilage ensure करते हैं ये collapse ना हो, ना तो ये contract हो. बिल्कुल ये पास में नहीं आने चाहिए. रिंग्स ऑफ कार्टिलेज का मेन फंक्शन ये होता है कि ये कोलैप्स ना हो, जो थ्रोट होता है. नेक्स्ट इज विद इन द लंग्स द पैसेज डिवाइड्स इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर ट्यूब्स व्हिच फाइनली टर्मिनेट इनटू अ बलून लाइक स्ट्रक्चर व्हिच आर कॉल्ड एल्वियोलाई. सो लंग्स के अंदर ना कुछ ऐसे प्रोजेक्शंस होते हैं. सी ये ऐसे कुछ प्रोजेक्शंस होते हैं लंग्स के अंदर, ये वाले बलून लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनको हम एल्वियोलाई बोलते हैं. तो एल्वियोलाई कहाँ प्रेजेंट है? लंग्स में. रिंग्स ऑफ कार्टिलेज कहाँ प्रेजेंट है? थ्रोट में. तो यहाँ पे एक बलून लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ऐसे होते हैं जैसे लंग्स होता है, ये ऐसे ऐसे, इनको हम क्या बोलते हैं? एल्वियोलाई. और इनका मेन फंक्शन क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एल्वियोलाई का. सो बलून लाइक स्ट्रक्चर्स जिनको हम बोलते हैं एल्वियोलाई. Coming to the next point, alveoli provides a surface where the exchange of gases can take place. They can provide a surface where carbon and oxygen will exchange. As we have seen in earlier years, when we breathe in, we lift our ribs and flatten our diaphragm, and the chest cavity becomes larger
as a result. Because of this, air is sucked into the lungs and fills the expanded alveoli. देखो क्या होता है, जब भी हम सांस लेते हैं तो हमारी जो चेस्ट होती है वो लिफ्ट हो जाती है, ऊपर हो जाती है. जैसे देखो हम बलून फिल करते हैं ना, whenever we inflate balloon, तो क्या होता है जब भी हम बलून को मुंह से फुलाते हैं या फिर कोई आजकल इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं तो क्या होता है वो एक्सपैंड होने लगता है ना, ताकि एयर उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जाए. ऐसे जब हम सांस लेते हैं तो हमारे अंदर ना एक्सपेंशन होता है ताकि एयर ज़्यादा से ज़्यादा अंदर आ सके, और जैसे ही हम रिलीज करते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है. सो वेन एवर वी ब्रीथ वी लिफ्ट आर रिब्स एंड फ्लैटन आर डायफ्राम. डायफ्राम क्या होता है, एक ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जैसे ये लंग्स होते हैं. आई एम नॉट गुड एट ड्राइंग मच. यहाँ पे डायफ्राम प्रेजेंट होता है, लंग्स के बेस पे डायफ्राम होता है, ये डायफ्राम होता है. तो जब भी हम सांस अंदर लेते हैं, ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, तो ये जो रिब्स होते हैं ये ऊपर लिफ्ट हो जाते हैं और डायफ्राम जो होता है वो स्ट्रेट हो जाता है, ऐसे स्ट्रेट हो जाता है. तो ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस मिल जाता है हमें ऑक्सीजन को इनटेक करने के लिए. Now draw the next flow chart. Whenever we breathe in, when we breathe in, what will happen? Lifts, ribs will lift up, ribs lift up, diaphragm straight, diaphragm will be straight. Next point, when we breathe in, we lift our lips, flatten our diaphragm, and the chest cavity becomes larger. Chest cavity will become larger, or you can say that diaphragm becomes flat. The chest cavity becomes larger. Chest cavity because expansion होगा ना, जैसे बलून का केस है, जब whenever we fill air inside the balloon तो बलून का स्पेस भी बढ़ जाता है, ऐसे ही चेस्ट कैविटी का स्पेस बढ़ जाएगा. चेस्ट कैविटी expands. Now next line, because of this air is sucked into the lungs and fills the expanded alveoli. तो basically expand क्या हो रहा है, alveoli expand हो रहे हैं. Now air will fill into the expanded alveoli. Expanded alveoli. Air fills in expanded alveoli. The blood brings carbon dioxide from rest of the body for release into the alveoli, and the oxygen in the alveolar air is taken up by the blood in the alveolar blood vessels to be transported to all the cells in the body. अब देखो, जो भी हम एटमॉस्फेयर से एयर ब्रीथ करते हैं तो उसमें बहुत सारी गैसेज होती है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, एयर भी होती है और भी अदर गैसेज होती हैं. तो जब भी हमने सांस लिया तो अंदर ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत सारी गैसेज गई. अब जितनी भी गैसेज अंदर जाती हैं तो वो सब हमारी ब्लड में मिक्स हो जाती है. कुछ % CO2 भी मिक्स होती है हमारे ब्लड में. तो ये क्या होता है कि ब्लड जो होता है सारी कार्बन डाइऑक्साइड जितनी भी हमारी सेल्स में प्रेजेंट होती है वो कहाँ पे ले आता है, एल्वियोलाई के पास. ये एल्वियोलाई है, दिस इज एल्वियोलाई. ब्लड क्या करेगा, सारे सेल्स से कार्बन डाइऑक्साइड लेके, ब्लड CO2 लेके यहाँ पे आ जाएगा एल्वियोलाई के पास. अब यहाँ पे CO2 दे देगा, यहाँ से CO2 बाहर चली जाएगी, और जो हमने एयर को ब्रीद इन किया था उसमें ऑक्सीजन होगी, वहां से ऑक्सीजन ब्लड के साथ सारे सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी. तो ये होता है एल्वियोलाई का फंक्शन. जितनी भी हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड है, ब्लड क्या करेगा, सारे सेल से कार्बन डाइऑक्साइड लेके एल्वियोलाई के पास आएगा, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चली जाएगी. जो भी हमने एयर ब्रीद इन करी थी वहाँ से ऑक्सीजन आएगी, ऑक्सीजन इस ब्लड के साथ जाके सारे बॉडी सेल्स में चली जाएगी. यहाँ से ऑक्सीजन जाएगी ब्लड में एंड देन टू ऑल द सेल्स. सो ये होता है मेनली एक्सचेंज प्रोसेस कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का. तो सबसे पहले क्या हुआ, नोस्ट्रिल से हमने ब्रीद इन किया, हेयर्स एंड म्यूकस थे, इनका काम क्या होता है, फिल्टर करना. म्यूकस का काम लुब्रिकेशन भी होता है. देन जो भी हमने ब्रीद इन किया एयर वो थ्रोट पे जाती है, वहाँ पे रिंग ऑफ कार्टिलेज होते हैं, दे इंश्योर दैट थ्रोट विल नॉट कोलैप्स. उसके बाद लंग्स होते हैं,
फिर लंग्स के अंदर बहुत छोटे छोटे सैक्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं बलून लाइक स्ट्रक्चर, एल्वियोलाई. Whenever we breathe in, our ribs lift up, diaphragm will become flat, chest cavity expands and the air will fill into the expanded alveoli. तो कहाँ से ये एयर फिल हुई है? यहाँ से, जहाँ पे ये सारा प्रोसेस हुआ है कि जब हमने ब्रीथ किया है, लिफ्ट रिब्स जो है वो लिफ्ट अप हो गए हैं, डायफ्राम फ्लैट हो गया है, एल्वियोलो में जगह बन गई है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन आएगी, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चली जाएगी. तो ये होता है एक्सचेंज प्रोसेस. During the breathing cycle, when air is taken in and let out, the lungs always contain a residual volume of air so that there is sufficient time for oxygen to be absorbed and for the carbon dioxide to be released. अब देखो क्या हुआ, जब भी हमने ब्रीदिंग साइकिल, जब हमारी ये ब्रीदिंग साइकिल कंप्लीट हो रही है, एयर अंदर आ रही है, बाहर जा रही है, ऑक्सीजन अंदर आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रही है, तो लंग्स के बाद ना हमेशा एक रेसिडुअल वॉल्यूम होता है, मतलब एक बची हुई वॉल्यूम भी होती है. अब देखो ये जो प्रोसेस है इसमें कुछ तो टाइम लगेगा ना, तो उनके पास एक रेसिडुअल वॉल्यूम होती है ताकि उस टाइम में जितनी भी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो सके, क्योंकि एक सेकेंड भी हम ऑक्सीजन के बिना नहीं रह सकते. तो एक रेसिडुअल वॉल्यूम भी होती है ताकि वो फुलफिल हो सके, सफिशिएंट टाइम भी मिल जाए कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को एक्सचेंज होने में, और रिक्वायरमेंट भी फुलफिल हो जाए. व्हेन द बॉडी साइज ऑफ एनिमल इज लार्ज, द डिफ्यूजन pressure alone cannot take care of oxygen delivery to all parts of the body. अब अगर कोई बहुत बड़ा एनिमल है ना, तो हमने देखा था डिफ्यूजन के थ्रू जो होता है ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज हो जाती है. लेकिन अगर कोई बहुत बड़ा एनिमल है तो उसमें सिर्फ डिफ्यूजन के थ्रू हम नहीं मीट कर सकते ऑक्सीजन के रिक्वायरमेंट को. इंस्टेड रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स टेक अप द ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर इन द लंग्स and carry to the tissues which are deficient in oxygen before releasing it. तो उनमें क्या होता है, एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट होते हैं जो कि ऑक्सीजन को लेते हैं बाहर से, और जितने भी सेल्स हैं जो कि डेफिशिएंट ऑक्सीजन में वहाँ जाके डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, रिलीज कर देते हैं. इन ह्यूमन बींग्स रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज हीमोग्लोबिन विच हैज़ अ वेरी हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन. This pigment is present in the red blood corpuscles or red blood cells which we call it RBCs. Carbon dioxide is more soluble in water than oxygen and hence is mostly transported in the dissolved form in our blood. अब देखो क्या होता है, ये समझ आ गया ना? Shall I rub this now? You can take the screenshot if you want. Okay, now I hope you all are reading with me. You have your books with you, a pen to note down everything and making flow charts. Trust me, if you start reading NCERT's making flow chart, you can score very good marks in science. Yes, so what happens when the size is large, be it animals or human beings, animals हो या human beings हो, तो हमें क्या चाहिए होता है, एक पिगमेंट चाहिए होता है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट चाहिए होता है, पिगमेंट. और ह्यूमन बीइंग्स में इस पिगमेंट का नेम क्या है, हीमोग्लोबिन. हीमोग्लोबिन एक पिगमेंट होता है जो कि रेड कलर देता है हमारे ब्लड को. सो द पिगमेंट इन ह्यूमंस इज हीमोग्लोबिन. दिस हीमोग्लोबिन हैज अ वेरी हाई इंफिनिटी फॉर ऑक्सीजन. मतलब ये जो हीमोग्लोबिन है ना, ये ऑक्सीजन के साथ बहुत जल्दी बाइंड कर सकता है. हाई एफिनिटी है मतलब बाइंड कर सकता है ऑक्सीजन के साथ. will take up the oxygen from the air in the lungs and carry it to the tissues. This respiratory pigment is hemoglobin which has a very high affinity for oxygen. High affinity means बहुत जल्दी bond बना लेगा. High affinity for oxygen, not for carbon dioxide. अगर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ होता तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को बहुत जल्दी एब्जॉर्ब करता, लेकिन हाई एफिनिटी विद ऑक्सीजन, तो जल्दी जल्दी ऑक्सीजन इसके साथ बाइंड हो सकती है. दिस पिगमेंट इज प्रेजेंट इन द आरबीसीज. सो ये कहाँ पिगमेंट प्रेजेंट कहाँ होती है, आरबीसीज में, क्योंकि ये पिगमेंट ब्लड में ही तो प्रेजेंट होती है और ब्लड मेनली आरबीसीज से बनता है. आरबीसीज, रेड ब्लड कॉर्पसल्स. एंड व्हाट इज द लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसीज, 120 days. 120 days. आरबीसी का लाइफ स्पैन 120 days होता है. हाई एफिनिटी होती है ऑक्सीजन के साथ. अब जो कार्बन डाइऑक्साइड है एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है और बहुत अलग चीज़ है कि कार्बन डाइऑक्साइड ना ज़्यादा सॉल्यूबल होती है वाटर में एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन एंड हेंस इज मोस्टली ट्रांसपोर्टेड इन द डिसॉल्व फॉर्म इन आवर ब्लड. देखो इसको तो जो ऑक्सीजन है वो तो हीमोग्लोबिन के साथ भी बाइंड हो रही है. ऑक्सीजन बाइंड हो सकती है यहाँ पे,
लेकिन जो CO2 है वो हाईली सॉल्यूबल है वाटर में, हाईली सॉल्यूबल इन वाटर। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये हमारी बॉडी में मेनली ट्रांसपोर्टेशन की हेल्प से ही डिफ्यूज होती है, हेंस इज मोस्टली ट्रांसपोर्टेड इन द डिजॉल्व फॉर्म इन आवर ब्लड। तो ये ट्रांसपोर्ट होते हैं डिजॉल्व फॉर्म में, क्योंकि ये सॉल्यूबल है, हाईली सॉल्यूबल है वाटर में, तो किस में होगी, डिजॉल्व फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है, ट्रांसपोर्टेड इन द डिजॉल्व फॉर्म, इन द डिजॉल्व फॉर्म। जैसे हमने देखा था एक्वेटिक एनिमल्स के लिए ऑक्सीजन जो होती है वो डिजॉल्व फॉर्म में होती है वाटर की, लेकिन बहुत कम अमाउंट में होती है। क्यों होती है, दिस इज द रीजन, बिकॉज CO2 इज हाईली सॉल्यूबल इन वाटर एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इतनी ज्यादा सॉल्यूबल नहीं होती, ट्रांसपोर्टेड इन द डिजॉल्व फॉर्म। और ये कहाँ ट्रांसपोर्ट होती है, एल्वियोलाई में, क्योंकि एक्सचेंज करना होता है हमें CO2 एंड ऑक्सीजन का, तो ये यहाँ पे डिजॉल्व फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है। और ऑक्सीजन कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, हीमोग्लोबिन की फॉर्म में, क्योंकि ब्लड से होता है। सो दैट इज ऑल अबाउट रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। फ्रॉम टुमारो वी विल स्टार्ट ट्रांसपोर्टेशन। I hope all the things are clear to you. If you have any doubts, you can comment down below. Thank you for watching. Bye bye. See you in the next one. And keep revising, keep reading your books.